مدینے کا منظر ہنسی اس قدر ہے، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، مدینے لوگ امن کی جگہ کھوجتے ہیں اور فلسطین کی مائیں دھنیہ ہے جو امن کی جگہ نہیں بلکہ شہادت کی جگہ تلاش کر رہی ہے۔ 70 سال سے وہاں بم گرا، ان کے بچے شہید ہو رہے، لیکن ان کی مائیں کہتی ہیں کہ نہیں، میں فلسطین نبیوں کی زمین نہیں چھوڑوں، رسولوں کی زمین نہیں چھوڑوں، قبلہ اول کی زمین چھوڑ کے نہیں جاؤں، یہ زمین پہ مجھے رہنا ہے، آج نہیں تو کل کوئی بچہ صلاح الدین نام کا جنم لے گا اور جو فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھے گا، قبلہ اول کو غیروں کے تسلط سے آزاد کروائے گا۔ اسی آس میں 70 سال سے اپنے بچوں کو شہید کروا رہی ہیں، کوئی نہ کوئی دن ضرور آئے گا، امید کی صبح طلوع ہوگی، قبلہ اول غیروں کی گرفت سے آزاد ہوگا۔ ہمارے جیسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے وہ مائیں جو بم کھانے کے بعد، بچوں کے شہید ہونے کے بعد بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کسی کی رحمت خدا بندی کا جھونکا آئے گا اور کوئی نہ کوئی صلاح الدین غیر بن کے آئے گا جو غیروں کے ڈیرے توڑ کر قبلہ اول کو اس کے چنگل سے آزاد کروا۔ بے شک ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے پاخانہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور فلسطین کی عورتیں اپنے بچوں کو بہادر اپنے شہیدوں کی ماں بننے کے لیے پیدا ہوئی۔ ان سے کوئی پوچھے زندگی کیا ہے، ان سے کوئی پوچھے شہادت کیا ہے، ان سے کوئی پوچھے جنت کیا ہے، ان سے کوئی پوچھے قرآن پاک کی آیتوں میں جو ہے جو نصرہ اور بشارت سنائی گئی ہے اس پر اس کا ایمان، اس کا حوصلہ کیسا ہے، ان سے کوئی پوچھے۔ ہم لوگ کھانے پینے والے اس لیے دماغ میں ہمارا کچرا بھرتا ہے کہ میرا مستقبل کیسا ہے، آنے والا میرا دن کیسا ہے، پتہ نہیں اسلام لانے کی کیا سزا ہم کو مل رہی ہے۔ نہیں، تم سے بہتر بات وہ بولا یورپ کا دانشور برنارڈ شا، وہ کہتا ہے if any religion has a chance of ruling over England میں یورپ within the next 100 years it is Islam۔ وہ مولانا نہیں ہے، وہ کرسچن ہے، دنیا کی تعلیم یافتہ ہے، بہت بڑا ڈراماٹسٹ، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا انگریزی زبان کا اسکالر۔ کون؟ ڈاکٹر برنارڈ شا۔ وہ کیا کہتا ہے if any religion has a chance of ruling over England لے یورپ within the next 100 years it is Islam۔ آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں بلکہ پورے یورپ بر اعظم میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب اسلام بننے والا ہے۔ رسول سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ۔ وہ یہودی، وہ کرسچن بولتا ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی، ہندوستان کی ساری یونیورسٹیز میں جارج برنارڈ شا کی کتاب چلتی ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے کہ ان کے مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہندوستان کے سارے کالجز میں ان کی کتاب چلتی ہے، کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ لچا لفنگا گٹکا خور اگر اسلام کے خلاف کچھ تبصرہ کرتا ہے، ان لچوں لفنگوں کی حیثیت، اس کی اوقات کیا ہے، جس کے پیٹ میں 2 کیجی پاخانہ لیے پھرتا ہوگا اور پاخانہ کرنے کی جگہ نہ ملے تو کپڑے ہی میں پاخانہ ہو جائے۔ یہ چلا ہے اسلام کے خلاف تبصرہ کرنا، یہ چلا ہے قرآن کے خلاف بولنے کے لیے، بات گرہ باندھ کے رکھ لی۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو میری بدعملی کی سزا، ورنہ اسلام وہ زبردست دین ہے کہ 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، مکہ کے لوگوں نے بولا اسے مٹا دے، اللہ نے 40,000 لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت عطا کر دیکھا، 4 تھا 40,000 ہو گئے، بدر میں آگ لگ گئی مشرکین کی، کہا کہ اب مسلمانوں کو مٹا کے میں دم لوں گا، دشمنی بڑھا دی، حملے بڑھا دی، اللہ رب العزت نے کافروں کا غرور توڑنے کے 4 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر کفار و مشرکین کے سینے پہ حل چلنے لگا۔ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ 4 لوگ تھے، 4 لاکھ ہو گئے۔ کہا کہ بس جب تک اسلام کے پیغمبر ہیں تب تک تو یہ سب کو حوصلہ دلاتے ہیں، جس دن یہ پردہ فرما گئے اس دن مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہاں تک کہ سرکار پردہ فرمائے، صدیق اکبر حضور کا جانشین ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟
اسلام اتنا اسٹیبل ہوا کہ 2 سال میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ واہ دشمنوں نے کہا تھا کہ اسلام کے پیغمبر کے وصال کے بعد اسلام لانے والے اسلام سے پھر جائیں گے، لیکن صدیق اکبر نے آقا علیہ السلام کی جانشینی کا وہ حق ادا کیا کہ اسلام اسٹیبل ہوا۔ اسلام کے خلاف سازش رچنے والوں کے ٹھیلے توڑ دی، فتنے ارتداد انہوں نے دبایا، مانعین زکات کے فتنے کو صدیق اکبر نے دفن کیا، اور پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم کا جب دور آیا 10 سال کا پیریڈ، پھر کیا ہوا؟ اس کے زمانے میں ایران جیسا مجوسی کا ملک فتح ہوا اور روم جیسا ملک عیسائیوں کا فتح ہوا، یعنی آدھی دنیا پہ مسلمانوں پر قبضہ ہے۔ یہ بولا کہ اسلام مٹا دیں گے، 1 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر بولا مٹا دیں گے، 100 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور ابھی 100 سال پہلے بولا تھا اسلام کو ہم دنیا سے ختم کر دیں گے، نہ آزاد ہوگی نہ قرآن کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے ان تمام دشمنوں کو بتا دیا کہ اسلام مغلوب ہونے نہیں، اسلام غالب ہونے آیا ہے، اسلام پوری دنیا کے ہر گھر میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ یہ 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ کر ان کے سینے پہ ہل چلنے لگا۔ آج کی تاریخ میں 200 کروڑ لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد لگا ہوا ہے۔ یہ محمدی فوج 200 کروڑ کی تعداد میں دنیا میں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تک مسلمان گھٹے نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدا غریب نواز کون سا ہے؟ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن ہے، نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، بھوکوں سے چرا بجھایا نہ جائے گا۔ اتنا تو گرا باندھ کے رکھ لیتے، تم آج سے 100 سال پہلے اس دنیا میں نہیں تھے۔ ہم لوگوں کی عمر 50 60 70 80 90 100 سال 100 سال سے اوپر کے کون لوگ ہیں؟ ہم موجود ہیں، کون ہیں دنیا میں؟ جو ہیں بھی ایک کا دو 4 لوگ تو مردہ سے بدتر ہیں۔ 100 سال کے اندر ہی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 10 سال 25 سال 50 سال 70 سال 80 سال، بس اس کے آگے نہیں ہے۔ تو 100 سال پہلے ہم نہیں تھے مگر اسلام تھا۔ آج کے 100 سال کے بعد ہمارا بچہ بھی نہیں رہے گا مگر اسلام رہے گا، چونکہ ہمارا بچہ جو آج پیدا ہوا ہے 70 80 90 سال کے اندر ہی مر جائے گا۔ تو جو پہلے لوگ تھے وہ نہیں رہے، آج جو ہیں وہ بھی کل نہیں رہیں گے، مگر اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا اور شان سے رہے گا۔ اور جب جب مسلمانوں کا بچہ شہید ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے، اللہ 1 لاکھ کافروں کے دل میں اسلام کی دولت مسلمان کہہ رہا۔ اس لیے آج اگر فلسطین میں اگر 15,000 بچے شہید ہوئے ہیں تو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرنا تو ہے ہی دنیا میں، چاہے لیٹرین روم میں مرو یا بارات جاتے ہوئے مرو، یا فیکٹری میں بیٹھ کے مرو، یا ہاسپٹل میں ایلی رگڑ کے مرو، یا راستہ چلتے ایکسیڈنٹ کر کے مرو، یا پنجاب سے جاتی ہوئی ٹرین میں آگ لگے اس میں جل کے مرو، مرنا تو ہے ہی۔ تو جل کے مرنا، گھر میں مرنا، باتھ روم میں مرنا، ہاسپٹل میں مرنا اور ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کی خاطر شہید ہو جانا، اور سب سے اعلیٰ موت ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے، جو اللہ کے نام پہ گزرے کر جائے۔ سب سے اعلیٰ قسم کی موت وہ ہے کہ میری زندگی خدا کے نام پر ہو جائے۔ اس لیے شہادت سے مسلمان گھبراتا نہیں، شہادت کے لیے مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان شہادت کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان قبائل کے کوٹے پہ نہیں مرتا ہے، مسلمان گٹکا کھاتے کھاتے نہیں مرتا ہے، مسلمان تالی پیتے پیتے نہیں مرتا ہے، مسلمان سنیما دیکھتے دیکھتے نہیں مرتا ہے، مسلمان سنیما حال میں نہیں مرتا ہے، مسلمان مسجد میں مرتا ہے، ذکر کرتے کرتے مرتا ہے۔ تو اب جو ساری زندگی گٹکا کھائے گا وہ زبان پہ کلمہ جاری کیسے ہوگا؟ جو ساری زندگی قبائل کے کوٹھے پہ جائے گا وہ مسجد میں کیسے مرے گا؟ جو ساری زندگی جھوٹ بولے گا وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کیسے مرے گا؟ جو ساری زندگی گندوں لچوں لفنگوں بے نمازوں شرابیوں جھوٹوں حرام خوروں کی صحبت میں رہے گا وہ کیسے اللہ کے ولیوں کے پاؤں میں جا کے اچھی موت مرے گا؟ جو گندوں کی صحبت میں رہے گا گندی موت مرے گا۔
जो झूठ बोलेगा वो झूठ बोलते बोलते मरेगा। जो कोठे पे जाने का आदी होगा वो जिना करते करते मरेगा। जो शराब की भट्टी में जाने का आदी होगा वो शराब पीते पीते मरेगा। जो चुगलखोरी गीबत करने का आदी होगा वो चुगलखोरी गीबत करते करते मरेगा। और जो कलमा पढ़ने, दुरूद पढ़ने, नमाज पढ़ने का आदी होगा वो कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा। और जब कलमा पढ़ते पढ़ते मरा तो दखल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रैक्टिस कर दुनिया में कि ताकि अच्छी मौत मरो। मरना तो है, कोई पैदा जिंदा रहने के लिए पैदा ही नहीं है, सब लोग मरने के लिए पैदा हुआ है। ना कोई वली, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्दाल, वो सब के सबको मरना है। सबको मौत का मजा चखना है। ना मौलाना, ना मौलवी, कोई जिंदा रहने के लिए आया। ऐसा नहीं कि मैं कुरान हदीस बोल रहा हूँ, मैं इस्लाम सिखा रहा हूँ, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं है। मैं भी मरूंगा, हमारे शायर भी मरेंगे, हमारे इमाम साहब भी मरेंगे, और सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे। मगर शादी की पार्टी में नाचते नाचते मरना और है, अल्लाह का जिक्र करते करते जलसा में मरना और है, गाना गाते गाते मरना और है, नाच पढ़ते पढ़ते मरना और है, शराब की भट्टी में मरना और है, मस्जिद में हालत सजदा में मरना और है, सलीमा के लिए एक्टिंग करते करते मरना और है, और तकरीर खत्म करने के बाद कारी रसूलुल्लाह जैसा कलमा पढ़ते मरने वाला और होता। इसलिए सबों को आला मौत नसीब नहीं होती। आला मौत अगर चाहिए तो रोजाना कुरान पढ़, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़, अपनी ज़बान को झूठ से बचा, अपनी ज़बान को गुनाहों से बचा, अपनी ज़बान को फुज़ूलगोई से बचा, और मौत की तैयारी कर। अगर ये बात अच्छी मौत मरने का नशा हुआ तो किसी प्रदेश में भी रहेगा, हॉस्पिटल में, वहां अगर नमाज पढ़ेगा, कोई बात भारी न रहे तो अल्लाह का फरिश्ता तेरी ज़बान पे कलमा जारी करवा देगा। मश्क कर, प्रैक्टिस कर, जो जिस हाल में जिए लगेगा अल्लाह ताला उसी हाल में उसको मौत देता है। हमारे बुजुर्ग हालत सजदा में मरते हैं। तुमने नहीं सुना हिंदुस्तान में एक ऐसा फकीर था जिसके जनाजे में 100 से ज्यादा ममालिक के लोग जमा हो गए, 1 करोड़ के करीब लोग जिसके जनाजे में आ गए। वो वही था जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता था, चाहे पढ़ने का जमाना हो या फिर तकरीर और तदरीस का जमाना हो, अमेरिका हो या बिहार का देहात हो, वो कभी नमाज नहीं छोड़ता था। अल्लाह ने वो दिन दिया कि 75 साल की उम्र में जुमा की नमाज पढ़ के, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज का इंतजार था। और हदीस में आया है जो नमाज के इंतजार में रहता है वो नमाज की हालत में रहता है, नमाज के अंदर रहता है। असर पढ़ के मगरिब का इंतजार है, उधर अज़ान मगरिब हुई, इधर चेहरे पे नूर चमका और रूह कब से अंसुरी से परवास कर गई। वह कौन था जो हालत नमाज में अवतारों की मौत मरा? वो था अपने वक्त का काजू शरिया अज़हरी, जो सारी जिंदगी रब का कलमा पढ़ा, कुरान सुनाया, तो अल्लाह ने ऐसी मौत अता कर दी जो मौत अवतारों, कुतुबुल इरशाद, अल्लाह के वलियों, सिद्दीकों को जो मौत नसीब होती वो मौत अल्लाह ने काजू शरिया को अता किसको मिलती है ऐसी मौत? इसलिए हलाल रोजी की तलाश में फैक्ट्री में बैठना बुरा नहीं, हलाल रोजी की तलाश में चाय का गिलास धोना बुरा नहीं, हलाल रोजी की तलाश में चप्पल जूता सी करके 500 रुपए कमाना बुरा नहीं है। हराम का 1 करोड़ रुपया उससे बेहतर है जूता सीकर 100 रुपए कमाने वाला। कि हराम के रुपए पे लानत है, पसीना बहा के हलाल रुपए में अल्लाह की रहमत शामिल है। इसीलिए जितने भी हराम खोर है उनके चेहरे से उड़े रहते हैं, उनके बाल बच्चों का सीना बिगड़ा रहता है, उनकी निगाहों में दीनदारी नहीं, उनकी निगाहों में किसी लड़की का तलवा चाटने का नशा छाया रहता है। इसीलिए जिस तरह कुत्ता हड्डी तलाश करता रहता है, उसी तरह चंद लुच्चे रफों के बच्चे हैं जो गली कूचे में दूसरों की बहू बेटी को तलाश करते रहते हैं, वह उसी तरह गली का कुत्ता है जो हड्डी खोजता है। जबकि हर खैरतमंद जानता है कि जिसको मैं तकता हूँ वो किसी की माँ होगी, वो किसी की बहन होगी, वो किसी की बेटी होगी। का मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ पे कोई बुरी निगाह डाले, मेरी बहन पे कोई बुरी निगाह डाले, मेरी बेटी पे कोई बुरी निगाह डाले। जब तू नहीं चाहता है तो फिर तू कुत्ता बनकर हड्डी की तरह दूसरों की बेटी को कैसे देखता है, दूसरों की बीवी को कैसे झांकता है, दूसरों की बहन को कैसे झांकता है। हराम खोरों की औलाद भी हराम खोर पैदा होती है। कुदरत का कानून है, जब बाप है अली और माँ फातिमा को
बेटा हसन और हुसैन जन्म लेता है। और जब बाबू सैयद मूसा जंगी दोस्त और बाबू माहू आबेदा साहिदा को बेटा बंदों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। और जब बाबू सैयद गयासुद्दीन और माहू राघव मुसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ने वाली, तब उनके पेट का बच्चा 90 लाख काफिरों को मोमिन बनाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कौन पढ़े? शादी सिर्फ गाल देखने के लिए नहीं होती, शादी सिर्फ गोरा रंग देखने के लिए नहीं होती। 4 दिन का बुखार ये गोरा गाल काला कर देता है। 4 दिन का लूज मोशन पूरी पर्सनैलिटी को स्याह कर देती है। तो शादी औलाद के लिए होती है, और औलाद माँ के पेट से पैदा होती है, ना के बाप के पेट से। इसीलिए माँ जमीन की मानित है, माँ का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। सिर्फ नाक नक्शा नहीं देखना चाहिए, सिर्फ रंग नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये जो जिससे मैं निकाह कर रहा हूँ या यूज्ड है या अनयूज्ड है। किसको 5 लड़के ने इस्तेमाल किया है, या फिर मेरे लिए पवित्र अनटच्ड बन के मैंने निकाह किया। अगर वह यूज्ड है, मेरी तरह 2-4 लड़के ने इस्तेमाल किया है, कोई याद रख लेना, जो यूज्ड है उसके बच्चे कभी मुत्तकी परहेजगार शरीफ नहीं पैदा हो सकते। जैसी जमीन वैसी फसल, जमीन बंजर हो तो फसल बंजर मरी नहीं पैदा होती। आम का पेड़ लगा के सेब वहां से नहीं निकलता, कटहल का पेड़ लगा के अमरूद वहां से नहीं निकलता। जैसा दरख्त वैसा फल। इसलिए लड़की का मुखरा मत देखना, मुस्तफा ने कहा है कि शादी ब्याह में चेहरा मत देखना। ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। वाला अमतुन सौदा सातुद्दीन अफसल, नबी कहते हैं काली कनोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। इसलिए कि हुस्न का रंग 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाता है, और अखलाक का रंग मरते दम तक गहरा है। दीन का रंग, अखलाक का रंग। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लुट रहे हैं? फ्री फायर, गेम, मोबाइल। मुसलमानों की लड़कियां इंस्टाग्राम पे कैसे कैसे नाच रही हैं, काफी कौमें दंग है। जिसके यहाँ जुमा का खिताब है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जिसके यहाँ ईदैन की तकरीर है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जिसके यहाँ दस्तारबंदी के जलसे हैं कि जिसमें कुरान पढ़ के सुनाया जाए ऐसे जियो ऐसे मत जियो, जहाँ जहाँ वाज नहीं है, दूसरों के यहाँ नसीहत नहीं है, दूसरों के यहाँ कुरान जीने का सलीका नहीं है, उनके यहाँ अब बेदारी आ गई, वो आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं। आहा, जिंदगी नाम का रिसाला निकल रहा, जिंदगी कैसे गुजारे वो किताबें पढ़ के अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सलीका उसको आ गया। और जिस मजहब में हर जुमा के दिन तकरीर फर्ज है, जिस मजहब में हर ईदैन के दिन लंबी तकरीर वाजिब है, जिस मजहब में ईदैन निकाह का खुतबा सुन्नत है, जिस मजहब में 11वीं 12वीं बात का हमेशा तकरीर जरूरी है, महफिल मिलाद सीरतुन नबी के जलसे, और हर जलसे में सिर्फ बात क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या फॉरबिडन है क्या परमिटेड है, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये बताते दुनिया में किसी कौम के पास है कि हफ्ता में 1 दिन जमा होना है और वहाँ 10 मिनट समझाना है कि ये करो ये मत करो, ये हलाल है ये हराम है। दुनिया में किसी कौम के पास ये सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम है नमाज जुमा की सूरत में तो मुसलमानों के पास मौजूद है। बचपन से ही जुमा के दिन सुनते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, झूठ बोलना हराम है, सूद खाना हराम है, शराब पीना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम है, अपनी बीवी को सताना जुर्म है, अपने पड़ोसी को सताना हराम है, गीबत करना हराम है, चुगलखोरी हराम है। ये बताएं कि जो बचपन से सुनता है मस्जिदों में, अगर वो चुगलखोर, अगर वो हरामखोर बन जाए, किस कदर फिल्म बना और ट्रेजिडी की बात है। ये सिस्टम किसी के पास नहीं है, जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है। मगर आज हालात ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा लड़कियां अगर इंस्टाग्राम पे नाचती हैं मुसलमानों की, सबसे ज्यादा तवाइफ के कोठों पर अगर मुसलमानों की बेची जाती है कोई तवाइफ की सूरत में, वो मुसलमानों की
बेटियां हैं। हिंदुस्तान के सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां बंगाल की बेटियां, वो बेटियां दिल्ली के तराइफ के कोठे पर बेची जाती है। मुसलमानों की बेटियां वो दुबई में लाखों की तादाद में वहां बेची जाती है, कई लाख मुसलमानों की बेटियां। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके यहाँ ईदेन का खुतबा, जुमा का खुतबा, मिलाद की महफिल है, सीरत की महफिल है, दस्तारबंदी की महफिल है, जहाँ सिर्फ हदीस कुरान ही सिखाया जाता है, बच्चों को चटाई पे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि इसके नौजवान बिगड़े शराबियों की तादाद दुनिया में अव्वल नंबर पे यहूदी ईसाई के बाद मुसलमान है, और सबसे ज्यादा मुसलमानों की बेटियां तवाइफ के कोठे पर आज जा रही हैं। इसमें बदन में आग कैसे लग गई? अभी एक शख्स ने बताया परसों कि एक लड़की है वो भी नाचती है और उसका 70 साल का बुढ़ा बाप भी नाचता है, और उसकी बिल्कुल नेकेड और न्यूड पिक्चर सामने पे डाला जाता है और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया? बच्चे उजड़ गए, बच्चियां उजड़ गई, समाज उजड़ गया। हमने नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला किसी लड़की से प्यार करता है और जब जी भर गया तो 50 टुकड़े में काट के उसको 50 जगहों में फेंक देता है। नहीं देखा कि मुसलमान की बेटी नागपुर की एक हिंदू ढाबा वाले के पास आई, अपना मजहब छोड़ के शादी करती है, और जब उसको निचोड़ लेता तो दरिंदा फिर गला दबा के जबलपुर की नहर में उसकी लाश को फेंक देता है। आए दिन खबरें मिलती है कि मज़ारे पाक पर जितनी औरतें बुढ़ापे में भीख मांग रही हैं, ये वो है जो जवानी के दिनों में मर्जी के मुताबिक वो लव मैरिज किया और 2-4-10 दिन के बाद जब जी भर गया तो अब शौहर की तरह जीना चाहता है, और उनकी बीवी सोचती है कि अब इनके दिल में मेरे पहले जैसा प्यार नहीं रहा, तो फिर दोनों में तकरार होती है और निकाह टूटता है। अब जब उन्होंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उन्होंने दूसरों को गले लगाया, अब माँ बाप के घर में वो जा नहीं सकती। अब एक रास्ता है, जब तक सेहत है तवाइफ के कोठे पर, और जब गला आना छोड़ दी बीमार होने के बाद, उम्र ढलने के बाद, तो मज़ारे पाक पर बैठकर 2 टुकड़े के लिए भीख मांगना है। ये कितनी हजार औरतें हैं जो बुढ़ापे में मज़ार पे भीख मांग रही है, शहर खा के मर रही है, और जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से बाहर निकल के आजादाना ढंग से जीने का फैसला लिया था। अपने बाल बच्चों पे कंट्रोल कीजिए, और हमें मालूम है मौलाना तो किताब करके चला जाएगा, लेकिन रोजाना सुबह शाम रात दिन अपने बच्चों को दीन सिखाना, कुरान सिखाना, आलिमों का महत्व बताना, मदरसे की का महत्व बताना, कॉलेज में पढ़ना 8-5 घंटे और कुरान हदीस पढ़ना 5 मिनट, स्कूल में पढ़ाना बच्चों को 5 मिनट, वहां से आने के बाद इस्लामी ड्रेस पहना के मस्जिद ले जाना होगा, उसे दीन सिखाना होगा, 5 मिनट के लिए सही उसे कुरान बताना होगा। जिसके घर में डकैतों का आना जाना उसका बेटा चोर हो गया, जिसके घर में चोरों का आना जाना उसका बेटा लुच्चा लफंगा हो गया, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना उसकी बेटियां तबाइफ हो गई। लेकिन जिस घर में आलिमों का आना जाना है, जिस घर में पीरों का आना जाना है, जिस घर में कुरान पढ़ने वालों का आना जाना है, उस घर का ईमान सेफ है, उसका दीन सलामत है, उसकी ज़बान सलामत है। उसे चोरों डकैतों को ना महरम को अपने घर मत जाने दे, आलिमों को ला, पीरों को ला, ताकि वो सजदा करेगा, 1000 दरूद पढ़ेगा, तेरे बच्चों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा हो गई और कोई काफिर तेरी बच्ची का ईमान लूटना चाहा तो तेरी बच्ची उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी जिंदगी भर मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती शेर यारज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूब मकान बनाओ, बच्चे काफिर हो रहे हैं, खूब जमीन खरीदो, गाँव में बच्चियां तबाही बन रही है, अपने घर उजाड़ रहा। वो अदानी चेहरे पर हाजी साहब हैं और बेटी जींस और टी-शर्ट पहन करके अजनबी मर्दों के साथ दिल लगा रही। ये इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम सिखाता बच्चों पे कंट्रोल। बच्चा पैदा करने से पहले उसकी माँ का सिलेक्शन, और अपने घर में रोजाना आखिरत का चर्चा और दीन का चर्चा, कुरान का चर्चा, हदीस का चर्चा, ताकि बच्चा डीएम भी बन जाए तो काफिर न बने। डीएम के दफ्तर में बैठने के बाद दिमाग में रिंग बजे कि मैं काफिर नहीं हूं, मैं मोहम्मदी हूं। डीएम बनना और है, मुसलमान बना रहना और है। अगर चाहते हैं कि ईमान सलामत रहे तो आलिमों को गाली मत दें बच्चों के साथ। अगर चाहते हैं कि बच्चों का दीन सलामत रहे, मदरसे के खिलाफ बुराई मत बकाए। अगर चाहते हैं कि बस बच्चे दीन से जुड़े रहें, रोजाना 1 मिनट सही अपने घर में सारे लोग मिलजुल के खाना खाएं और खाते वक्त मौलाना की तकरीर में
मुस्तफा की हदीस में आता है, एक हदीस पढ़े फिर खाना खाए, और हदीस में आया है कि वला ताकुलू, तुम मत खाओ मुनफरिद, अलग अलग होकर, अपने घर में सब लोग मिलजुल के खाओ, क्योंकि बरकतें जमात के साथ वाबस्ता रहती है। अपने घर में खुद बैठिए, बीवी को बैठाइए, अपनी बेटी को बैठाइए, बच्चों को बैठाइए, एक साथ मिल के खाइए। मेहमान आ जाए तो ठीक है, आप उनके साथ बैठ के खाइए, लेकिन मेहमान रोजाना आते नहीं है, रोजाना कम से कम एक टाइम सही आप जब आता है घर में तो उसका दस्तरखान बिछा के सारे घर के लोग एक साथ मिल के खाएं, वहाँ बरकतें नाज़िल होती हैं। और फिर खाने से पहले मुस्तफा के एक हदीस सुना दिया जो मौलाना से सुना था जलसे में। मौलाना साहब ये कह रहे थे, तब ये बच्चे दीन से जुड़े रहेंगे, वरना ये बताइए कि 4 साल के बाद ये बच्चे अंग्रेजों के स्कूल जा रहे हैं, अगले में टाई डाल रहे हैं, वहाँ साहब जन गण मन पढ़ करके कृष्णों का प्रेयर वाला सॉन्ग गा रहे हैं, और फिर ये मौलाना को अपने लिए बोझ समझ रहे हैं। ये दाढ़ी रखना, इस्लाम टोपी पहनना, इस्लाम बोलना, इसे मौलाना का काम है। बाकी ये सारे फ्री हैं, जिए दुनियादारों की तरह और मर जाए फरिश्ता जन्नत चले जाए, ऐसा नहीं होता। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों को 50 करोड़ रुपए का घर देने से बेहतर है कि अदब का 50 जुमला